بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم جب غسل فرماتے تو آپ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ وضو کیا کرتے تھے۔ پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے۔ پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ نبی کریم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے۔ پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا۔ پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا۔ پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ میں اور نبی کریم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، اس برتن کو فرق کہا جاتا تھا۔ میں ابو سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے۔ ان کے بھائی نے نبی کریم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جیسا ایک برتن منگوایا، پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا۔ اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا۔ امام ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ یزید بن ہارون بحث اور جدی نے شعبہ سے قدسہ کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ وہ اور ان کے والد جناب زین العابدین جابر بن عبداللہ کے پاس تھے اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے غسل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک سا کافی ہے۔ اس پر ایک شخص بولا یہ مجھے تو کافی نہ ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے کافی ہوتا تھا جن کے بال تم سے زیادہ تھے اور جو تم سے بہتر تھے، یعنی رسول اللہ۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک کپڑا پہن کر ہمیں نماز پڑھائی۔ نبی کریم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ایک برتن میں غسل کر لیتے تھے۔ ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ اخیر عمر میں اس حدیث کو یوں روایت کرتے تھے، ابن عباس سے انہوں نے میمونہ سے، اور صحیح وہی روایت ہے جو ابو نعیم نے کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تو اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتا ہوں، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ نبی کریم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد ابن حنفیہ سے تھی، آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم 3 چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے۔ پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا۔ پھر زمین پر ہاتھ رگڑا۔ اس کے بعد کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا۔ پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ نبی کریم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے داہنے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصہ کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے۔ میں نے نبی کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرہ کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے۔ پھر آپ کو رومال دیا گیا، لیکن آپ نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ نبی کریم نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا، اور جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں دھوئے۔ میں اور نبی کریم ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔ جب رسول اللہ غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے۔ میں اور نبی کریم دونوں مل کر ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے۔ اور شعبہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم اور آپ کی کوئی زوجہ مطہرہ ایک برتن میں غسل کرتے تھے۔ اس حدیث میں مسلم بن ابراہیم اور وہب بن جریر کی روایت میں شعبہ سے من الجنابت کا لفظ زیادہ ہے، یعنی یہ جنابت کا غسل ہوتا تھا۔ میں نے حضرت کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا۔ آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 1 یا 2 بار دھویا۔ سلیمان عامش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن ابی اجد نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں۔ پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا۔
फिर कली की और नाक में पानी डाला और चेहरे और हाथों को धोया और सर को धोया, फिर सारे बदन पर पानी बहाया, फिर एक तरफ सरक कर दोनों पांव धोए। बाद में मैंने एक कपड़ा दिया तो आपने अपने हाथ से इशारा किया इस तरह कि उसे हटाओ और आपने इस कपड़े का इरादा नहीं फरमाया। मैंने हजरत के लिए गुस्ल का पानी रखा तो आपने पहले पानी अपने हाथों पर गिराकर इन्हें 2 या 3 बार धोया, फिर अपने दाहिने हाथ से बाएं पर गिराकर अपनी शर्मगाहों को धोया, फिर हाथ को जमीन पर रगड़ा, फिर कली की और नाक में पानी डाला, फिर अपने चेहरे और हाथों को धोया, फिर अपने सर को 3 मर्तबा धोया, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाया, फिर आप अपनी गुस्ल की जगह से अलग हो गए, फिर अपने कदमों को धोया। मैंने आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सामने इस मसला का जिक्र किया तो आपने फरमाया अल्लाह अबू अब्दुर्रहमान पर रहम फरमाए। मैंने तो रसूल अल्लाह को खुशबू लगाई, फिर आप अपनी तमाम अज़वाज मतहरात के पास तशरीफ ले गए और सुबह को एहराम इस हालत में बांधा कि खुशबू से बदन महक रहा था। नबी करीम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मतहरात के पास गए और ये 11 थीं, 9 मनकुहा और 2 लौनडिया। रावी ने कहा, मैंने अनस से पूछा कि हुजूर इसकी ताकत रखते थे, तो आपने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आपको 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। और सईद ने कहा क़तादा के वासिता से कि हम कहते थे कि अनस ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आपको 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। और सईद ने कहा क़तादा के वासिता से कि हम कहते थे कि अनस ने उनसे 9 अज़वाज का जिक्र किया। मुझे मज़ीद बकसरत आती थी चूंकि मेरे घर में नबी करीम की साहिबजादी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा थीं, इसलिए मैंने एक शख्स मक़दाद बिन असूद अपने शागिर्द से कहा कि वो आपसे उसके मुतालिक मसला मालूम करें। इन्होंने पूछा तो आपने फरमाया कि वज़ू कर और शर्मगा को धो, यही काफ़ी है। मैं इसे गवारा नहीं कर सकता कि मैं एहराम बांधूं और खुशबू मेरे जिस्म से महक रही हो। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैंने खुद नबी करीम को खुशबू लगाई। फिर आप अपनी तमाम अज़वाज के पास गए और उसके बाद एहराम बांधा। गोया कि मैं हज़रत की मांग में खुशबू की चमक देख रही हूँ इस हाल में कि आप एहराम बांधे हुए हैं। रसूल करीम जनाबत का गुस्ल करते तो पहले अपने हाथों को धोते और नमाज की तरह वज़ू करते, फिर गुस्ल करते, फिर अपने हाथों से बालों का खलाल करते और जब यकीन कर लेते कि जिस्म तर हो गया है तो 3 मर्तबा इस पर पानी बहाते, फिर तमाम बदन का गुस्ल करते। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं और रसूल करीम एक बर्तन में गुस्ल करते थे, हम दोनों इससे चलो भर भर कर पानी लेते थे। रसूल अल्लाह ने गुस्ल जनाबत के लिए पानी रखा, फिर आपने पहले 2 या 3 मर्तबा अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डाला, फिर शर्मगा धुई, फिर हाथ को ज़मीन पर या दीवार पर 2 या 3 बार रगड़ा, फिर कली की और नाक में पानी डाला और अपने चेहरे और बाजुओं को धोया, फिर सर पर पानी बहाया और सारे बदन का गुस्ल किया, फिर अपनी जगह से सरक कर पाँव धोए। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं एक कपड़ा लाई तो आपने उसे नहीं लिया और हाथों ही से पानी झाड़ने लगे। नमाज की तकबीर हुई और सफ़ें बराबर हो गईं। लोग खड़े थे कि रसूल करीम अपने हुजरे से हमारी तरफ तशरीफ लाए। जब आप मसले पर खड़े हो चुके तो याद आया कि आप जनबी हैं। बस आपने हमसे फरमाया कि अपनी जगह खड़े रहो और आप वापस चले गए। फिर आपने गुस्ल किया और वापस हमारी तरफ तशरीफ लाए तो सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। आपने नमाज के लिए तकबीर कही और हमने आपके साथ नमाज अदा की। उस्मान बिन उम्र से इस रिवायत की मुताबत की है, अब्दुल्ला ने मुअम्मर से और वो ज़हरी से, और ओज़ाई ने भी ज़हरी से इस हदीस को रिवायत किया है। मैंने नबी के लिए गुस्ल का पानी रखा और एक कपड़े से पर्दा कर दिया। पहले आपने अपने दोनों हाथों पर पानी डाला और इन्हें धोया, फिर अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में पानी लिया और शर्मगा धुई, फिर हाथ को ज़मीन पर मारा और धोया, फिर कली की और नाक में पानी डाला और चेहरे और बाजू धोए, फिर सर पर पानी बहाया और सारे बदन का गुस्ल किया। इसके बाद आप मकाम गुस्ल से एक तरफ हो गए, फिर दोनों पाँव धोए। इसके बाद मैंने आपको एक कपड़ा देना चाहा, तो आपने इसे नहीं लिया और आप हाथों से पानी झाड़ने लगे। हम अज़वाज मतहरात में से किसी को अगर जनाबत लाहक होती तो वो हाथों में पानी लेकर सर पर 3 मर्तबा डालते, फिर हाथ में पानी लेकर सर के दाहिने हिस्से का गुस्ल करती और दूसरे हाथ से बाएं हिस्से का गुस्ल करती। आपने फरमाया बनी इसराइल नंगे होकर इस तरह नहाते थे कि एक शख्स दूसरे को देखता, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा पर्दा से गुस्ल फरमाते। इस पर इन्होंने कहा कि बखदा मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ ये चीज़ माने है कि आपके खसिये बढ़े हुए हैं। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे और आपने कपड़ों को एक पत्थर पर रख दिया। इतने में पत्थर कपड़ों को ले भागा और मूसा अलैहिस्सलाम भी इसके पीछे बड़ी तेजी से दौड़े।
आप कहते जाते थे, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे, ए पत्थर मेरा कपड़ा दे। इस अरसा में बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को नंगा देख लिया और कहने लगे कि बखदा मूसा को कोई बीमारी नहीं, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़ा लिया और पत्थर को मारने लगे। अबू हरीरा ने कहा कि बखदा इस पत्थर पर 6 या 7 मार के निशान बाकी हैं। एक बार अयूब अलैहिस्सलाम नंगे गुस्ल फरमा रहे थे कि सोने की चिड़ियां आप पर गिरने लगीं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम इन्हें अपने कपड़े में समेटने लगे। इतने में उनके रब ने इन्हें पुकारा कि अयूब, क्या मैंने तुम्हें इस चीज से बेनियाज नहीं कर दिया जिसे तुम देख रहे हो? अयूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ तेरी बुजुर्गी की कसम, लेकिन तेरी बरकत से मेरे लिए बेनियाजी क्यों कर मुमकिन है। और इस हदीस को इब्राहिम ने मूसा बिन उक़बा से, वो सफ़ून से, वो अता बिन यासार से, वो अबू हरीरा से, वो नबी करीम से इस तरह नकल करते हैं जबकि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम नंगे होकर गुस्ल कर रहे थे। आखिर तक मैं फ़तह मक्का के दिन रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई तो मैंने देखा कि आप गुस्ल फरमा रहे हैं और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पर्दा कर रखा है। नबी अकरम ने पूछा, ये कौन हैं? मैंने अर्ज़ की कि मैं उम्हानी हूँ। जब नबी करीम गुस्ल जनाबत फरमा रहे थे मैंने आपका पर्दा किया था। तो आपने पहले अपने हाथ धोए, फिर दाहिने हाथ से बाएं पर पानी बहाया और शर्मगा धोई और जो कुछ इसमें लग गया था उसे धोया, फिर हाथ को ज़मीन या दीवार पर रगड़ कर धोया, फिर नमाज की तरह वज़ू किया। पाँव के अलावा फिर पानी अपने सारे बदन पर बहाया और इस जगह से हटकर दोनों कदमों को धोया। इस हदीस में अबूना और मोहम्मद बिन फजील ने भी पर्दे का जिक्र किया है। सलीम अबू तुल्हा रज़ी अल्लाह अन्हा की औरत रसूल करीम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि अल्लाह ताला हक से हिया नहीं करता, किया औरत पर भी जबकि उसे इहतिलाम हो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, हाँ अगर अपनी मनी का पानी देखे तो उसे भी गुस्ल करना होगा। मदीना के किसी रास्ते पर नबी करीम से उनकी मुलाकात हुई। उस वक्त अबू हरीरा जनाबत की हालत में थे। अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं पीछे रहकर लौट गया और गुस्ल करके वापस आया। तो रसूल अल्लाह ने दरियाफ्त फरमाया कि अबू हरीरा, कहाँ चले गए थे? इन्होंने जवाब दिया कि मैं जनाबत की हालत में था, इसलिए मैंने आपके साथ बगैर गुस्ल के बैठना बुरा जाना। आपने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमन हरगिज नजस नहीं हो सकता। नबी अपनी तमाम अज़वाज के पास एक ही रात में तशरीफ ले गए। उस वक्त आपके अज़वाज में 9 बीवियां थीं। मेरी मुलाकात रसूल अल्लाह से हुई। इस वक्त में जनबी था। आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं आपके साथ चलने लगा। आखिर आप एक जगह बैठ गए और मैं आहिस्ता से अपने घर आया और गुस्ल करके हाजिर खिदमत हुआ। आप अभी बैठे हुए थे। आपने दरियाफ्त फरमाया, अबू हरीरा, कहाँ चले गए थे? मैंने वाक़या बयान किया तो आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, मोमन तो नजस नहीं होता। कहा, मैंने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि क्या नबी करीम जनाबत की हालत में घर में सोते थे? कहा, हाँ लेकिन वज़ू कर लेते थे। उम्र बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह से पूछा कि क्या हम में से कोई जनाबत की हालत में सो सकता है? फरमाया, हाँ, वज़ू करके जनाबत की हालत में भी सो सकते हो। नबी करीम जब जनाबत की हालत में होते और सोने का इरादा करते तो शर्मगा को धो लेते और नमाज की तरह वज़ू करते। क्या हम जनाबत की हालत में सो सकते हैं? आपने फरमाया, हाँ लेकिन वज़ू करके। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह से अर्ज़ की कि रात में इन्हें गुस्ल की ज़रूरत हो जाया करती है तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि वज़ू कर लिया कर और शर्मगा को धोकर सो जा। नबी करीम ने फरमाया कि जब मर्द औरत के चहारज़ानू में बैठ गया और इसके साथ जमा के लिए कोशिश की तो गुस्ल वाजिब हो गया। उस हदीस की मुताबत उम्रू ने शोबा के वासिता से की है और मूसा ने कहा कि हमसे अबान ने बयान किया, कहा हमसे क़तादा ने बयान किया, कहा हमसे हुस्न बसरी ने बयान किया। उसी हदीस की तरह अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने कहा, यह हदीस इस बाब की तमाम हदीस में उम्दा और बेहतर है। और हमने दूसरी हदीस उस्मान और इब्न अबी कब की सहाबा के इख्तिलाफ के पेश नज़र बयान की और गुस्ल में इख्तियात ज़्यादा है। इन्होंने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तर हुआ लेकिन नज़ाल नहीं हुआ तो वो क्या करे? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि नमाज की तरह वज़ू कर ले और ज़िक्र को धो ले। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह से ये बात सुनी है। मैंने उसके मुतालिक अली बिन अबी तालिब, ज़ुबैर बिन उल-अवाम, तलहा बिन उबैदुल्लाह, अबी बिन कब रज़ी अल्लाह अन्हुम से पूछा तो इन्होंने भी यही फरमाया। यहिया ने कहा और अबू सलीमा ने मुझे बताया कि इन्हें रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी। इन्हें अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह अन्हा ने की ये बात इन्होंने रसूल अल्लाह से सुनी थी। इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब मर्द औरत से जमा करे और नज़ाल ना हो तो क्या करे? आपने फरमाया, औरत से जो कुछ उसे लग गया उसे धो ले, फिर वज़ू करे और नमाज पढ़े।
ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کہا غسل میں زیادہ احتیاط ہے، اور یہ آخری حدیث ہم نے اس لیے بیان کر دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے اور پانی سے غسل کر لینا ہی زیادہ پاک کرنے والا ہے۔